ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੋਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਨਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਕਿਤਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਤੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸਨ ਬੰਨਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਲ ਆਦਿਕ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਰਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੌਤ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। मौत गम है, मौत दुख है, मौत मौत है तो जिंदगी भी गम है। जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी बोझ है। अगर मौत गम है, मौत खुशी है तो जिंदगी ते आनंद हो गई, जिंदगी ते खेड़ है, जिंदगी ते मस्ती हो गई। पर जो मौत गम है, मौत का भय है, मौत ब्याह नहीं तो क्षमा करनी ब्याह भी ब्याह नहीं। अगर मौत ब्याह नहीं, मौत खुशी नहीं, मौत शादी नहीं तो शादी भी शादी नहीं है, जिंदगी भी शादी नहीं है। मुख्तसर में अर्ज करा तो दिन ते मिथ्या होया, सतगुरु कहते हैं दिन मिथ्या होया, निश्चित है। होर ते सब कुछ अनिश्चित है, ये बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मौत निश्चित है, लाजमी है। एक गल वखरी है कि उस निश्चित खित का सानू ना पता होवे, सतगुरु नूं पता, इस वास्ते कहने ने उते गिणिया गया, संबत से गिणिया गया, साहा से गिणिया गया, दिन पे निश्चित हो गया, दिन पे जो है मिथ लिया गया। इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज बोल रहे ने उस जीव कामन की तरफों जिसका दिन मिथया जा चुका है, निश्चित हो चुका है, उसकी फरियाद का जिक्र करते हैं। हे सहेलियो, हुण तुसीं मिल के मैनू तेल लाओ, मैनू तोड़न की तैयारी करो, मैं सुख नाल जा सका। और सिर्फ मैनू तैयार ही ना करो, देहो सजन असीसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। असीसां भी दिओ। जिस घर में तुसीं बैठे हो, सहेलियां इन्हां नूं आखिया जा रहा, सतसंगियां असीस भी दिओ, शुभ असीसां भी दिओ कि ऐसा ही ना हो सिर्फ मैं तुरा, बरात तुरे, मेरे दर तक पहुंचे तो मैं अपने घर तक ना पहुंचा, भटक जावां, रह जावां। इस वास्ते असीस करो, बख्शिश करो, ताकि उस साहिब नाल, उस परिपूर्ण परमात्मा नाल मेल भी होवे। मौत मेल बने, मौत विछोड़ा ना बने, मौत आनंद बने, मौत सोग ना बने। जब कभी ये पंक्ति सुभावक पढ़न लग्या या कथा करन लग्या सामने आवे, मैनू इको एक पुरुष सामने आ जाता है, कानपुर का बाबा जगत सिंह। सुभावक को चलाना करन लगे, सारी जिंदगी वो धर्म ग्रंथ पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, तो भट्ठे का उन्होंने काम इट्टां दा, लेकिन भट्ठे ते बैठ के भी पाठ उन्होंने जारी रहिंदा। जिस दिन अंतिम दिन थे, संगतां उन्होंने घर पहुंचण लगियां तो किधर मेरे कन्नों से भी खबर पहुंच गई कि बाबा जगत सिंह जी चलाना कर रहे हैं। मैं भी पहुंच गया, डॉक्टर भी बैठा होया सी मायूस। मैनू देख के इशारा किया भी मेरे कोल आण बैठो।
मैं कोल चला गया। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਸੀ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮੇਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮੇਲ, ਇਹ ਮੌਤ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ, ਕਿਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਸਦੜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰੋ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦੜੇ ਪੈਰਨ, ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਆਵਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਤੁਸ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਨੇ ਅਖਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਟਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਾ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए रहा। जिसुए ससियां घड़ियां पैरां तित्ती वारी माओ हुआ, सूरज को रुत अनेक, नानक करते के तेरे। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋਹੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਏ
कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता का जो आधार है वो एक है। इस गल नूं सतगुरां ने करीबन हर पंक्ति च दोहराया है कि जगत दे जिथे तक वेखांगे अनेकता ही अनेकता है। समाज के तल ते, नीति के तल ते, धर्म के तल ते अनेकता है। पर महाराज कहने ने इस अनेकता का आधार जो है वो एक है। ते प्रथम ये जड़ियां दो उपर दियां पंक्तियां ने शायद इस दे इत्थे तक प्रमाण करते हैं कि जगत के जिहड़े कुछ सिरमौर मनुख होए ने धार्मिक आचार्य उन्हां दे भी विचार करीबन एक नहीं थे। 6 घर 6 गुरु 6 उपदेश। जैसे वेदां तो बाद हिंदुस्तान के जिहड़े धार्मिक ग्रंथ लिखे गए ते जिन्हां दा बहुत डूंगा असर हिंदुस्तानियां ते पिया वो 6 शास्त्र ने। पहला शास्त्र सांख जिहदे रचेता सन कपिल मुनि ते कपिल मुनि का बहुत वड्डा प्रभाव भारत वासियों ते पिया। इस तो बाद गौतम ऋषि जी आए, उन्होंने न्याय शास्त्र लिखे। उन्होंने कृत ते करते का अनादि रूप मनिया ते करते नूं सुतंत्र भी ना मनिया। लेकिन गौतम ऋषि गौतम बुद्ध नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध का जो ग्रंथ है वो धम्मपद है। वो इन्हां 6 ऋषियां दे शुमार नहीं है। वो महात्मा बुद्ध अवतारी पुरुषों च गिने जाते हैं। दूजा शास्त्र न्याय, इसका रचेता जो है गौतम ऋषि। तीसरा शास्त्र विशेषक, इसके रचेता सन ऋषि कणाद जी। इन्हां दे नां जिहड़ा कणाद पै गया भोज पत्रां दे उत्ते जिहड़े इन्हां ने धर्म परमात्मा दे ते अपने अनुभव लिखे, उस लिखत का नाम विशेषक पै गया। आप दा नाम जो कणाद पिया, जंगल दे कण इत्यादक खा लैणे, शहरां ते कस्बियां दी तरफ कदी रुख नहीं कीता, और सिवाए तन दी एक लंगोटी तो अपने कोल होर कुछ रखिया भी ना। भोज पत्थर जंगल दे चों इकट्ठे करके लियाने, उन्हां नूं सुकाना ते उन्हां दे उत्ते धार्मिक अनुभव वो लिखते गए। बस ये इन्हां दा शौक। भोज पत्रां दे उत्ते वो जिहड़े वाक लिखे गए वो तीजा शास्त्र से जिन्हों विशेषक कहते हैं ते इहदे रचनहार सन ऋषि कणाद। चौथा शास्त्र योग ते इहदे रचेता सन पतंजलि जी। ते भारत वासियों के खास करके त्यागी लोग, उदासी लोग, उपराम ते दुखी लोग, उन्होंने उत्ते योग शास्त्र का बहुत वड्डा असर पिया ते जोगियां का बकायदा एक बहुत वड्डा पंथ भारत विच विकसित होया। इसकी बुनियाद पतंजलि के योग है। अगां चलिए, फिर पंजवां शास्त्र है मीमांसा। इहदे रचेता ने जैमिनी ऋषि, जो किसी हद तक व्यास के चेले सन। ते 6वां शास्त्र है वेदांत। इसके रचेता स्वयं ऋषि व्यास जी ने। ते वेदांत का सनातन मत के उत्ते बहुत वड्डा प्रभाव पिया। योग मत पतंजलि तो चल पिया। तर्क ते कुतर्क की भावना का जन्म न्याय तो हो गया।
कुछ भगती दीयां लहरां चलियां ਉਹ ऋषि कणाद तो प्रभावित होके जिन्हों ने विशेषक लिखिया। और सांख्य जो किसी हद तक एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति की विचार करता अहम ब्रह्मस्मि, इस तरह की विचारधारा के मनुख कपल तो बहुते प्रभावित होए। तो सतगुरुदेव जी महाराज इन्हां 6 शास्त्रां की प्रथम गल करते हैं। आप कहते हैं 6 घर। पहले वाक दे आख्या बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए मूल पंक्ति रहाऊ दी पंक्ति। ते पहला शब्द कीर्तन सोयले का जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। इन्हां 2 शब्दों के घर की गल चल रही है। घर वो घर जिथे बैठ के मनुख करते पुरख की विचार करे, करते पुरख नूं टोले, करते पुरख नूं लभण की कोशिश करे। प्रथम वाक दे आपने ये कह दिता सत्संग घर है, जिथे बैठ के करते पुरख की कीर्ति आउंदी है, उहदी विचार आउंदी है, ये उसका घर है। उस घर विच जाके तूं उहदी विचार कर, उहदी कीर्ति गायन कर। जिथे रोज रोज कीर्ति गायन होवे, रोज रोज विचार होवे, बस वो छोटा वड्डा ते महान तीर्थ बन जाता है। जितनी वड्डी विचार होवे, जितना ज्यादा कीर्तन होवे, वो उतना ही पावन वड्डा ते महान तीर्थ बन जाता है ते जगत के मन नूं उतना ही प्रेरणा देता है। सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कह रहे हैं धर्म ग्रंथ भी उसका घर ने। जिथे सतसंग घर है वो जिथे करते पुरुष की टोल की जा सकती है। उस तो बाद जो धर्म ग्रंथ ने वो भी घर ने। महाराज कहते ने पुराने घर वेखिए तो 6 ने, 6 घर 6 शास्त्र ने, जिन्हां दे चों कपिल दा रचिया होया सांख, गौतम दा रचिया होया न्याय, कणाद दा रचिया होया विशेषक, पतंजलि दा रचिया होया योग, जैमिनी दा रचिया होया सांख, और इसी तरीके दे नाल वेदांत दे रचनहार स्वामी व्यास जी। महाराज कहते जिथे घर 6 ने, गुरु भी 6 ने, आचार्य भी 6 ने। इन्हां 6 ग्रंथां दे बनाण वाले 6 गुरु ने, भाव 6 आचार्य ने, लिखारी 6 ने। फिर जिहड़ी मूल गल सतगुरु करते हैं वो कि 6 उपदेश, इन्हां दा उपदेश भी 6 तरह का एक नहीं है। ये 6 महापुरुष परमात्मा प्रति 6 तरह की विचार देंदे ने, एक विचार नहीं है। हिंदू धर्म के जिहड़ियां अनेकां शाखां बन गईयां, उन्हां अनेकां शाखां का मूल कारण भी ये अनेकां शास्त्र ने। क्यों कि इन्हां दी विचार एक नहीं। तो जोगियां दे टोलियां का जन्म होया, सन्यासियां दे टोलियां का जन्म होया, बैरागी पैदा होए, ब्रह्मचारियों के टोलियां का जन्म होया, तार्किक लोग पैदा होए, और एक दूजे का करीबन करीबन खंडन ही करते रहे। कारण इन्हां 6 का उपदेश एक नहीं। तो क्या ये दोष भरी गल है? कतई नहीं। जिस तरह नदियां वख-वख रस्तियां तो समुंदर तक पहुंचदियां ने, मनुख की सुरत भी वख-वख मार्ग तो परमात्मा तक पहुंची है। ते क्योंकि हर बंदे का सुभाव वख-वख है, इस वास्ते हर बंदे की देखण दृष्टि ते हर बंदे की खोज का ढंग भी वख-वख होवेगा। एक ऐसा मनुख जो सिर्फ ध्यान साधना कर सकता है, कीर्तन उस वास्ते देवै नहीं है। जैसे पतंजलि नूं कोई कहे भी तू कीर्तन कर, उहदी उस्तति कर, तू रटन कर, पतंजलि का इस कोई विश्वास नहीं थी। पतंजलि का इस कोई भरोसा नहीं थी। उन्हें योग शास्त्र प्राणायाम दीयां अनेकां विधियां लिखियां ने,
और वो ये कहता है कि जीव शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है, पावन हो सकता है, संस्कारां की जिहड़ी मैल जमी है दूर हो सकती है। तो मैल जमी है फुरनियां नाल, ते फुरने चलते हैं श्वासां नाल, श्वासां नूं रोक दो, फुरने रुक जाएंगे, सहजे सहजे जमी हुई जिहड़ी मैल है सारी खत्म हो जाएगी। कीर्तन करो, कथा करो, नाम जपो, इस तरह की विधि दे पतंजलि का कोई विश्वास नहीं। लेकिन मैं अर्ज करा, पतंजलि नूं भी रब्बी रस मिलिया, उन्होंने भी परम आनंद प्राप्त होया। कीर्तन दे कथा दे बहुता विश्वास से ऋषि व्यास का, वो तो यही कहते सन भी उहदी विचार करो, कीर्तन करो, कथा करो, नाम का रटन करो। पर व्यास नूं भी रस मिले, आनंद मिले, ते गौतम इहदी विचारधारा बिल्कुल नियारी। वो कहते ने मैल जिहड़ी है कुछ भी नहीं, अज्ञान ही मैल है, होर तो कुछ भी मैल नहीं। मैल किस नूं कहते ने? क्रोध नूं मैल कहते ने, लोभ नूं मैल कहते ने, काम नूं वो कतई नहीं मनदा। वो कहता मूल मैल अज्ञान है, अज्ञान नूं मिटा दो, जीव पवित्र। सारी उसकी साधना है ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञान मिट जाएगा। बाकी किसी साधन की तरफ उसने प्रेरिया नहीं, बाकी किसी साधन नाल उसने जो है जोड़िया नहीं। तो मैं अर्ज करा, इन्हां महापुरुषों के खोज के ढंग वख-वख सन, कारण कि हर मनुख का सुभाव वख-वख है। तो जब सुभाव वख-वख है, रुचियां वख-वख ने, तो पसंद भी वख-वख होगी। हो सकता है कोई मूल मंत्र ते गुर मंत्र दे जाप दे ते ध्यान साधना दे बहुता विश्वास रखे ते छेती गल बन जाए। ते इस तरह के भी पुरुष देखे ने जिन्होंने कीर्तन दे ही बड़ा रस आउंदा, बड़ा आनंद आउंदा, सरूर तारी हो जाता। कीर्तन ना सुनन ते गल बनती नहीं उन्होंने वास्ते। पर इस तो उल्ट भी नहीं कुछ, जो सिर्फ एक ही अखर का जाप करके आनंद मान लेंदे हैं। स्वभाव की गल है। गल इतनी है कि ध्यान कित्थे टिकदा है और किस विधि नाल टिकदा है, किस ढंग नाल टिकदा है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बहुत वड्डी खुल दिली इत्थे। आप कहते ने 6 शास्त्र ने, 6 उन्होंने गुरु ने, पर उपदेश भी 6 ने, उपदेश एक नहीं है। पर महाराज कहते ने गुर गुर एको, इन्हां 6 गुरुआं दा गुरु एक परमात्मा है। इन्हां 6 गुरुआं ने 6 शास्त्रां की प्रेरणा उस एक गुरु तो लई। कि ज्ञान कित्थों आया? परमात्मा तो। वेस अनेक, भावें इन्हां दे रूप 6 दे वख-वख ने, 6 शास्त्रां दे रूप वख-वख, 6 इन्हां जिहड़े आचार्य ने, जैमिनी, व्यास या पतंजलि के रूप वख-वख ने। पर महाराज कहते हैं इन्हां 6 का जो गुरु है वो एक है। ते समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे उस एक नूं लभना ते एक नाल जुड़ना, ये गुरमत का सिद्धांत है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो शुरू होती है, अनेकता च नहीं पैना, एक दे च पैना। जिहड़ी गल तालमेल खांदी है उन्होंने आधार बना के, आसरा बना के रब नाल जुड़न की कोशिश कर, परमात्मा नाल जुड़न की कोशिश कर। तेरे नाल किहड़ी गल तालमेल खांदी है, ये तू अपने सुभाव नूं परख ले। और इस सारी संसार की अनेकता का जो आधार है वो एक है। जैसे लहरां अनेक ने, सागर एक है। लहर छोटी है, वड्डी है, कोई बहुत वड्डी है। ऊपर ऊपर देखिए तो लहरां ही दिखाई देंदियां ने, लेकिन समूह लहरां का संबंध सागर नाल है। सागर एक है, लहरां अनेक ने। निरंकार एक है, संसार के रूप से अनेकां ने। लहरां बनदियां ने, मिटदियां ने,
संसार का रंग रूप बनता है मिटदा है, बनता है मिटदा है, लेकिन फिर भी लहर सागर का हिस्सा है। सागर दे चों उत्पन्न होई है, लहर नाल नफरत भी सागर नाल नफरत होवेगी, लहर नाल दुश्मनी भी सागर नाल दुश्मनी होवेगी, लहर का चंगे ना लगना भी किसी हद तक सागर का चंगे ना लगना। इस वास्ते गुरु नानक ने जो बुनियादी गल कह दी हुए कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे तू एक नूं लभना है। आप कहते की होया 6 गुरु ने, शास्त्र 6 ने, इन्हां दे रचेता 6 ने, उपदेश 6 तरह के ने, पर इन्हां सारियां दा गुरु एक है कि सारे उस एक तो प्रेरणा ले गए। कहते ने रस जब भी किसी को आया, चाहे योग साधना नाल आया, ध्यान साधना नाल आया, कीर्तन करके आया, विचार करके आया, नाम जप के आया, रस दे कोई अंतरा नहीं, अंदर की जिहड़ी अनुभूति है उहदे कोई अंतरा नहीं। लेकिन जब यात्रा शुरू की जाती है तो वख-वख थां तो शुरू की जाती है, वह भिन्न भिन्न है, उत्थे अनेकता दिखाई देती है। और इस अनेकता नूं देखदे ही कुदरती गल है, फिर मनुख का मन छिंडदा। महाराज कहते इस अनेकता नूं ना वेख, इस अनेकता का जो आधार है वो एक है। सारी दी सारी जिहड़ी अनेकता है वो एक दे आसरे ते खड़ी है। 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश, गुरु गुर एको, वेश अनेक, बाबा जय घर करते कीरत होए। जिस घर विच करते पुरख की कीर्ति है, हे बाबा, जिस घर विच बाबा बड़ा पावन पवित्र शब्द, किसी नूं बुजुर्ग कहना है, महान कहना है, पावन कहना है, पवित्र कहना है, तो अरबी भाषा का यह लफ्ज़ बाबा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब किसी नूं समझाते भी ने तो बहुत प्यारे लफ्ज़ नाल, बाइज्जत लफ्ज़ नाल, हे बाबा जिस घर विच करते पुरख की कीर्ति है, जिस धर्म ग्रंथ विच, जिस घर विच सो घर राख वड़ाई तोए, उस घर विच तू अपना हिरदा रख, उस घर विच तू अपने आप नूं रख, इसे दे च ही तेरी वडियाई, इसे दे च ही तेरी महिमा। संप्रदाय इंज भी अर्थ करते रहने और करते ने, हे अकाल पुरख जिस घर विच तेरी महिमा, जिस धर्म ग्रंथ विच तेरी वडियाई है, तेरी कीर्ति है, उस ग्रंथ नूं बचा, उस धार्मिक अस्थान नूं बचा, ये भी एक तेरी वडियाई होवेगी। संप्रदाय इस ढंग नाल अर्थ करते रहने। 2, 3, 4 अर्थ करने का मेरा सुभाव नहीं है, मैं सुभाव इतनी अर्थ कर दी है कि अनेकों तरह के अर्थ ने जो जमीर नूं अपील कीते ने मैं थोड़े सामने रखदा पिया। बाबा जय घर करते कीरत होए, हे बाबा, हे आलम फाजल, हे बंदे, जिस घर विच करते पुरख की कीर्ति है, जिस धर्म ग्रंथ विच उसकी विचार है, उसकी कीर्ति है, उसका ज्ञान है, जिस घर विच कीर्ति गायन की जा रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, सो घर राख, उस घर विच तू अपने आप नूं रख, उत्थे तू अपना हिरदा रख, उस घर विच तू अपना मन रख, वडाई तोए, इसे ची तेरी वडियाई, इसे ची तेरी महिमा, इसे ची तेरी महानता है। क्यों कि उस घर विच तैनू अपना असला दिस पवेगा, उस घर विच जैसे तू अपने आप नूं रखेगा तो उहदे तैनू प्रभु की झलक मिलेगी, अकाल पुरख का रूप मिलेगा, ज्ञान प्रकाश मिलेगा, और इसे ची तेरी महिमा है, इसे दे च ही तेरी जो है वडियाई है। बाकी मैं फिर लफ्ज़ दोहरा दें, आप अपनी बुध है जैसे वर्णत भिन्न भिन्न तोहे देते, लेकिन मेरी ज़मीर अज तक ऐसा भी नहीं कह सकी कि जिन्होंने अर्थ किए ने वक-वक सारे गलत ने।
कतई गलत नहीं ने। ना फरीदकोटियां का टीका गलत है ते ना ही संप्रदायी ते ना ही उदासी या निर्मले। कीर्तन सोहले के अर्थ भी ना सारे महापुरुषों ने कीते ने और कर रहे हैं और लिख रहे हैं। एक विचार जो मन मनदा मैं थोड़े सामने रखी है, लेकिन यही सही है, इस तरह का कोई दावा नहीं है। पता नहीं की सही है कि अकाल पुरख जाने, गुरु जाने। बाबा जय घर करते कीरत होए, हे सियाणे हे आलम फाजल। जिस घर दे करते पुरख की कीर्ति हो रही है, जिस धर्म ग्रंथ दे, जिस अस्थान दे, तू अपने आप नूं उत्थे रख, तू अपने हिरदे नूं उत्थे रख, तू अपने मन नूं उत्थे टिका। इसे दे तेरी महिमा, इसे दे ही तेरी वडियाई है। तू अनेकता दे किधरे ना फस जाए। बई एक शास्त्र कुछ कहता है, दूजा शास्त्र कुछ कहता है, एक मजहब कुछ कहता है, दूजा मजहब कुछ कहता है। नमाज पढ़ के भी लोग रब नाल जुड़े ने ते पूजा करके भी लोग रब नाल जुड़े। तीर्थां दा रतन करके भी लोगों ने आनंद माणे, कीर्तन करके भी परमात्मा नाल जुड़े, योग साधना करके भी लोगों ने पवित्रता नूं जाणिया ते प्राणायाम करके भी किसी ने आनंद माणिया। केवल प्रार्थना अरदास करदियां होइयां भी कई अकाल पुरख नाल जुड़े ने, परमात्मा नाल जुड़े ने। तो वख-वख साधना नाल जिहड़े जिहड़े महापुरुष जुड़े ने, बेशतर महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच है। बाबे फरीद दा अकाल पुरख दे नाल जुड़न दा अपना ढंग है, कबीर दे जुड़न दा अपना ढंग है, स्वामी रामानंद दे जुड़न दा अपना ढंग है, ते भगत पीपा जी अपने ढंग नाल बंदगी करते ने। श्री नामदेव जी महाराज दा अपना मार्ग है, त्रिलोचन ते सदने दी अपनी गल है। सारियां दे मंत्र भी एक नहीं सन, वख-वख मंत्रां दा जाप करते सन, वख-वख इन्हां दी साधना, लेकिन सारे दे सारे विराजमान ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। तो गुरमत दा मूल संदेश उपदेश ऐ बंदे, समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे एक नूं लभ। अनेकता ते रहेगी जगत दे, किस तरह तू मिटाएगा? एक दा रंग दूजे नाल नहीं मिलता, सुभाव नहीं मिलता, भाषा नहीं मिलती। लेकिन एक भाषा ऐसी है जिन्हों परमात्मा समझता है, बाकी भाषावां नहीं। ये गल वखरी है कि ब्राह्मणों का दावा से कि परिपूर्ण परमात्मा संस्कृत समझता है, क्योंकि संस्कृत देव बाणी है, देव भाषा है। तो मुसलमानों ने कितने पिछे रहना से, उन्होंने कह दिता अरबी जड़ी है कि खुदा की बोली है, क्योंकि कुरान नाजल हुई है। तो चूंकि नाजल हुई है तो अरबी दे हुई है, खुदा अरबी समझदा है, खुदा अरबी बोलदा है। बौद्ध भिक्षु किथे पिछे रहिंदे, उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध भगवान ने, ते उन्होंने जो बोल बोले ने पाली दे बोले ने, तो भगवान की भाषा पाली है। जिथे जिथे बौद्ध धर्म फैलिया, उन्होंने सारिया ने पाली भाषा नूं पढ़न दी ते सीखण दी पूरी कोशिश की थी, क्योंकि भगवान की भाषा है। गुरु नानक ने भी दसिया रब की भाषा की है, बकायदा दसिया कि परमात्मा की बोली की है, परमात्मा की भाषा की है। तो इतनी गल तो स्पष्ट है कि भाषा तो बिना संबंध नहीं जुड़ता। इशारियां नाल कोई बहुत लंबी गल नहीं की जा सकती, इशारियां नाल कोई बहुत कुछ नहीं दसिया जा सकता, इशारियां नाल दूजे की गल कोई बहुती नहीं समझी जा सकती। एक दूजे के हिरदे नूं पढ़ना है तो भाषा चाहिए, भाषा का प्रयोग चाहिए है। भाषा एक हो, एक दूजे की भाषा समझी जाए तां ही गल बनेगी। तो परमात्मा साडी भाषा समझे तो असीं परमात्मा की भाषा समझीए, तो पहले गल ये होगी इसनूं समझना है कि रब की भाषा की है, परमात्मा की भाषा की है, वो की बोलता है। महाराज कहते हैं साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ आपार। पाख्या पाख्या कहते हैं भाषा बोली,
साचा साहिब वो मालिक सच्चा है ते साहिब मालिक है सच्चा है, बाकी सब झूठे मालिक ने। अज मालिक ने कल का कोई पता नहीं। अज इस तन दे अपने आप नूं मालिक कहिए, तन कल नूं खाक दे च रुलदा है, इहदे मालिक असीं नहीं रह जांदे। जिस जमीन दे असीं अज मालिक हां, पहले पता नहीं कितने मालिक हो चुके हैं। जिस आसन हम बैठे केते बैठ गया, कितने बैठ गए। महाराज कहते हैं मालिक सच्चा है, उसकी मलकीयत सच्ची है, उसका दावा भी सच्चा है, वो वाकई मालिक है। साचा साहिब साच ना है तो फिर उसकी वडियाई भी सच्ची है। भाखिया उसकी बोली की है, उसकी भाषा की है। साहिब कहते भाखिया उसकी भाव है, प्यार है, वो सिर्फ प्यार नूं समझदा। तू पंजाबी च बोल रहे हैं, इंग्लिश च बोल रहे हैं, हिंदी च बोल रहे हैं, संस्कृत च बोल रहे हैं, इसके नाल कोई मतलब नहीं। प्यार है हृदय के नहीं, भाव है हृदय के नहीं, वो भाव नूं समझदा। तू बहुत सारिया भाषा का पंडित हो के भी रब तो टुटिया रह सकता अगर रब की भाषा नहीं जानता। ते परमात्मा की भाषा गुरु नानक ने दसी भाव। ये नहीं आखिया कि परमात्मा संस्कृत समझदा, पाली समझदा, अरबी समझदा या फारसी समझदा, पता ही नहीं। और जब भी दुनिया सियाणी होगी, गुरु नानक देव जी महाराज के इस वचन नाल सहमत होना पड़ेगा कि रब की भाषा भाव है और कुछ नहीं। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी साफ कह दिता, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वेद पढ़ लेने, प्रेम कोई नहीं, रब नाल नहीं जुड़ सकेगा। रब की तो भाषा ही प्यार है, वो तो प्यार की भाषा समझदा, वो तो भाव नूं समझदा है। कभी बगौर मुताला करना, संबंध भाव करके जुड़ते हैं। और बंदा जमांदरू भाव लैके आया, विचार लैके नहीं आया। बच्चे का जन्म है, जन्म के नाल उसके अंदर भाव भी है, प्यार है। मां नूं वेखदा है, मुस्कुरा पैंदा, प्यो नूं वेखदा है, चिड़ पैंदा। अजे इसके अंदर विचार कोई नहीं, प्यो की है ते मां की होंदी है, मां की होंद की है, पिता की होंद की है, इस तरह की कोई विचार कोई नहीं, इस तरह की कोई सूझ समझ कोई नहीं, पर भाव है। भाव करके इसका संबंध जुड़िया होया। साहिबां की बाणी का फैसला है, जिथे भाव करके बच्चे का संबंध मां नाल जुड़िया है, प्यो नाल जुड़िया है, मां की होंदी है ते वास्तविक पिता की होंद की है, इस तरह की उसनों कोई समझ नहीं है। लेकिन भाव करके संबंध जुड़िया होया है। रब की है, वास्तविक की है, बंदा तो विचार कर करके भी खप जाएगा, थक जाएगा, समझ नहीं आवेगी। हो सकता है मां की होंद तू समझ भी लवें, जवान बच्चा समझ जाता है, थोड़ा जिहा वड्डा होंदियां समझ जाता है। पिता की होंद नूं तू समझ भी जावें, परमात्मा की होंद नूं ते समझ ही नहीं सकेगा। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम, वो असीम है ते तेरी सोचण शक्ति सीमा दे च। तो जो सीमा दे च है, वो असीम नूं किस तरह समझेगा, असीम नूं किस तरह पकड़ेगा। हाँ, जे किधरे तेरे अंदर भाव पैदा हो जाए, संबंध जुड़ जाएगा। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रग राया। भाव बंदे नूं भोला कर देंदा है, विचार बंदे नूं चलाक कर देंदा है। कभी बगौर मुताला करके देखना, जितना मनुख विचारक होंदा जाएगा, चलाक होंदा जाएगा, तो जितना भाव उसके अंदर वधेगा, भोलापन वधेगा। भाव से भोलापन कट्ठा जुड़े होया है, विचार से चलाकियां कट्ठियां जुड़ी हुई हैं। भगत कबीर का जो है बकायदा फैसला, चतराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो से उलाइए। चतराइयां सियाणपा आवे किते न काम, सहज सियाणपा लख होए तां एक न चले लाण। बथेरियां सियाणपां कट्ठियां कर ले,
ਬਹੁਤਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ ਬਣ ਜਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, संबंध नहीं जुड़ेगा। इस वास्ते बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विचार किसी हद तक नास्तिक देखे ने, हैरानगी है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े विचार इनकारी हो गए, कारण विचार दे परमात्मा आया ही ना, वो करते गए, विचार करते गए, तो आखिर नास्तिकता का जन्म हो गया। विचारक नास्तिक हो ही जाएगा, कुदरती गल है। बहुती विचार बंदे नूं नास्तिक बना ही देगी अगर भाव नहीं है। गुरु घर दे विचार प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। इन्नी मैं अर्ज कर दें, सुनिए मनिए मन कीता भाव। जे भाव नहीं पैदा होया सुनिया व्यर्थ चला गया, जे भाव नहीं पैदा होया मनिया व्यर्थ चला गया। क्योंकि संबंध भाव नाल जुड़ना सी, भाव नाल हिरदे ने शुद्ध होना सी। विचारक विचारक नाल लड़ पैंदा, दार्शनिक दार्शनिक नाल लड़ पैंदा। अर्थ बोध देते हिंदुस्तान विच अनेकों विचारक झगड़ते हुए मैं देखे, संबंध नहीं जुड़ता। लेकिन दो हिरदियां विच भाव होवे, प्रेम होवे, संबंध जुड़ जाता, बड़ा गूढ़ा रिश्ता जुड़ता। ते परमात्मा दी ते बंदा जितनी भी विचार कर लवे अधूरी है। तू सुन सही जरूर, तू मन, लेकिन जितने चिर तक भाव नहीं पैदा होया तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। भाव की महानता है, भाव नाल उस परिपूर्ण परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते रब की बोली भाव है। भाखिया भाव अपार, बड़ी कीमती गल है। भाखिया भाषा, परमात्मा की भाषा प्यार है। तो मत्था टेकिया है, इस मत्थे टेकन विच प्यार है कि नहीं? तो बाणी पढ़ी है, इस बाणी पढ़न विच प्यार है कि नहीं? तू कीर्तन कीता है, कीर्तन करन विच प्यार है कि नहीं? तू कीर्तन सुने है, तेरे सुनन विच अंतरात्मा प्यार है कि नहीं? रब प्यार की बोली को समझता है। ते सारे साधन इस वास्ते ने कि प्यार पैदा हो जाए, भाव पैदा हो जाए। महाराज कहते हैं उस परिपूर्ण परमात्मा की बोली प्यार है, भाव है। ते भाव बंदे नूं भोला कर देंदा है। भोले तो मुराद अंदरों बाहरों एक। हिंदुस्तान विच महादेव नूं शिव जी नूं लोकी भोलानाथ कहंदे ने, भोलानाथ। इस महान योगी नूं भोलानाथ करके पूजया जाता है, भोला शंकर, भोलानाथ। ते जब इतने वड्डे योगी दे नाल ये भोला शब्द जोड़िया गया तो फिर पड़चोल करने ते दास मजबूर होया। क्या वाकई भोलापन इतनी महान देन है, इतनी महान गल है कि इतने वड्डे योगी नाल शब्द भोला जोड़िया गया? भोला, भोलानाथ, भोला, भोला शंकर। पंजाबी विच आम मुहावरा भोले का मतलब मूर्ख होता है, भी तू बड़ा भोला है, तेनों समझ नहीं, बड़ा भोला है। दरअसल गलत थान से प्रयोग किया जा रहा है शब्द भोला। भोले का मतलब अंदरों बाहरों एक, मासूम, पवित्र। दो ही भोले होंदे ने, या बच्चा या संत, बाकी कोई नहीं भोला। या तो बच्चा भोला है या फिर संत भोला है। बच्चा जो कह रहा है, जो कुछ मुंहों बोल रहा है, अंदर भी उससे यही कुछ है, अंदरों बाहरों एक है। ते संत भी अंदरों बाहरों एक है। ते बाबा फरीद कहते ने जो अंदरों बाहरों एक नहीं होते कच्चा है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है। ये तो बिल्कुल कच्चे है। जबान कुछ और कह रही है, दिल कुछ और कह रहा है, कर्म कुछ और कह रहे हैं, अंदरूनी विचार कुछ और कह रही है, सोचनी कुछ और कह रही है, करनी कुछ और कह रही है। करनी ते सोचनी का तालमेल ही नहीं है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। ये तो कच्चे ने, पक्के नहीं ने, मजबूत नहीं ने, पुख्ता नहीं ने। भोला जो पक गया, अंदरों बाहरों एक है। महाराज से कहते ने
नानक कचड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या। तोड़ कच्चिया नाल ते कच्चे केड़े जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। जबान कुछ होर कह रही है, हिरदा कुछ होर कह रहा। सिर झुक रहा है, मन नहीं झुकया। ये सिर का झुकना कच्चापन है। शीश निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जाए, मन ते झुके भाव है नहीं, भोलापन नहीं है। तो भाव बंदे नूं भोला कर देंदा है। ते जिस तरह बच्चा भोला है, मां बाप दे प्यार का पात्र बन जाता है, भगत भोला है, परमात्मा की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है, अकाल पुरख की रहमत का पात्र बन जाता है। इस वास्ते परमात्मा के निकट ने भोले, परमात्मा के निकट ने भगत। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज के विचार ये फरमान पे करते हैं, किधरे तू तार्किक ना बन जाए, किधरे वाद विवाद ना खड़ा कर देवी कि 6 शास्त्र ने ते उन्हां दे आचार्य लेखक उच्चारण करने वाले 6 ने, पर उन्हां दे उपदेश भी 6 तरह के ने, एक नहीं ने। ते विवाद दे च ना पै जाए, तू झगड़ियां दे च ना पै जाए, और किधरे एक नूं तू अपना लवें ते बाकी आनू गलत साबित करने की कोशिश करे। ऐ ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। सारी दुनिया की शक्ति इसे च नष्ट हो रही है। इस्लाम यहूदियों को गलत साबित करने में नष्ट हो रहा है। यहूदी मुसलमानों को गलत पै साबित करते हैं, शिया सुन्नियां को गलत पै साबित करते हैं, सुन्नी शिया मुसलमान को गलत साबित करने की पै कोशिश करते हैं। साल दे साल हिंदुस्तान में भी शिया सुन्नी फसाद हो जाता है, हज़ारां मुसलमान मारे जाते हैं। हिंदुओं के बैरागी सन्यासियों को गलत साबित करते हैं, सन्यासी योगियों को गलत साबित करते हैं।